Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in geography, chapter number 4, composition and structure of the atmosphere. Before starting the chapter, let's have a quick view of the things which we will discuss in this chapter. First one is the composition of the atmosphere. Second one is about the structure of the atmosphere. Third one, the features of the 5 layers of the atmosphere, which we'll discuss in the chapter. And last one is how atmosphere is significant. Now students, what is atmosphere? क्या है atmosphere? Atmosphere, the blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. What is atmosphere? The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. The atmosphere is held around the earth due to the gravitational pull. Atmosphere हमारे surrounding में क्यों होता है? Due to the gravitational pull. Students, atmosphere of a place is determined by the climate and the weather of that particular place or area. Atmosphere of a place is determined by कि किसी भी place का atmosphere determine किया जाता है किससे? Determined by the climate and weather of that particular place or area. उस area के climate और weather पे depend करता है वहाँ का atmosphere. If there is any change in atmospheric condition, अगर वहाँ के atmosphere में कोई change होता है condition atmospheric condition में, then it also affect the weather and climate of that particular area. तो उस atmospheric में changes से उस एरिया के क्लाइमेट और वेदर में भी चेंजेस होते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल. नाउ फर्स्ट विल रीड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एज वी नो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर किससे बना है? मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. Apart from gases के अलावा atmosphere also have some water vapor, dust particles, many impurities like smoke, salts and other chemicals are also present in the varying quantity in the atmosphere. कि different gases के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, water vapor है, dust particles हैं, smoke particles हैं, different type of chemicals present in vary quantity. Vary means different quantities. Quantities means amount. कि different amount में atmosphere में present हैं. The main constituent gases are, लेकिन जो main gases हैं atmosphere में, that is first one is nitrogen, कितना? 78%. Oxygen about 21% and other remaining gases 1%. Again I am repeating, 78%, about 78% is nitrogen, about 21% is oxygen and 1% is the other remaining gases. और other remaining gases में हम include करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन. Clear student? Now move to the next point, structure of the atmosphere. Atmospheres extend approximately to 1600 किलोमीटर above the earth surface. अब एटमॉस्फेयर का एक्सटेंड मीन्स होता है उसका फैलना. एटमॉस्फेयर का विस्तार जो हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं 1600 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस. कि डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स होता है थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नियर द अर्थ सरफेस. और क्यों होती है? वाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग नियर द सरफेस. कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एज यू ऑल नो, अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है. तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो स्ट्रॉन्ग नियर द सरफेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नियर द सरफेस एरिया. And the total mass of the atmosphere lies within the height of 6 km from the earth surface. As we move further away from the surface, the air becomes thinner.
और जैसे जैसे हम मूव फर्दर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं फ्रॉम द सरफेस, द एयर बिकम्स थिनर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। और किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया है? अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। उनका कैसा टेम्परेचर है, वो किस चीज़ से, कंपोजिशन मीन्स होता है किस कैसी उसकी बनावट है, किस तरह कौन सी गैसेस से बनी है, कितना टेम्परेचर है, और दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने लेयर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दीज लेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन. फर्स्ट लेयर troposphere, then stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers of the atmosphere. One by one we will read about all these layers. First one will read about the troposphere. Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. ट्रोपोस्फेयर है लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट एक्सटेंड्स, एक्सटेंड मीन्स विस्तार, फैलना. इट एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर. अब इसका जो एक्सटेंड है, फैलाव है, हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं 8 किलोमीटर एट द पोल्स, पोल्स पे 8 किलोमीटर तक, एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर. Yes students, as you can see on page number 120, a diagram is given there, layers of the atmosphere. As you can see, the lowest layer is troposphere, then second one stratosphere, then mesosphere, thermosphere, and last one is exosphere. Clear student? Now let's continue our chapter. We are reading about the first layer, troposphere. Troposphere is the densest layer and the most of the dust particles, water vapor and impurities are found in this layer. ट्रोपोस्फेयर सबसे डेंसेस्ट लेयर है, डेंसेस्ट लेयर, एंड सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कौन सी लेयर में मिलती हैं? ट्रोपोस्फेयर में. ऑल वेदर फिनोमेना, वेदर फिनोमेना, फिनोमेना मीन्स वेदर रिलेटेड प्रोसेस, कि वेदर से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है, एग्जाम्पल जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉग, रेनफॉल, स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्नोफॉल, all these activities occur in this area. वो सारी activities कौन सी लेयर में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में. In this layer, the temperature of air decreases with increase of height at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter. This is called normal lapse rate of temperature. Now student, in this layer, which layer we are talking about? Troposphere. In troposphere, temperature of air decreases. Air का जो temperature है वो decrease होता है. Decrease means कम होना, घटना, with the increase of height. जैसे जैसे हम height पर जाते हैं temperature decrease होता है at the rate of, और इस temperature के decrease होने की एक rate है, जैसे हम समझते हैं 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, कि एज वी मूव 165 मीटर, हम जैसे ही 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल डिक्रीज, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है. देन अगेन वी मूव 165 मीटर, देन अगेन 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज. तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इस रेट को हमने नाम दिया है normal lapse rate of temperature. So what is normal lapse rate of temperature? Normal lapse rate of temperature is कि 1 degree Celsius for every 165 meter. 1 degree Celsius. As we move 165 meter of height, 1 degree temperature will decrease, and this is known as normal lapse rate of temperature. Troposphere is the lowest and densest layer. That is why it absorbs maximum heat radiates by the Earth's surface and keeps the Earth warm.
Now next layer is stratosphere. Stratosphere is the second layer of the atmosphere. Stratosphere, which layer? Second layer of the atmosphere. It extends to the height of 50 kilometers above the earth's surface. और extend क्या है stratosphere का? 50 kilometer above the earth's surface. It contains ozone which absorbs the ultraviolet radiation of the sun to prevent it from reaching the earth surface. कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से ओजोन लेयर कहाँ पे मिलती है? स्टेटोस्फेयर में. तो इट कंटेन ओजोन लेयर है विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और फ्रॉम रीचिंग इट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सो टेम्परेचर इंक्रीजेज इन दिस लेयर. इसीलिए इस लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज रहता है. दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. कि क्लाउड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में नहीं होता है. एंड वेदर एसोसिएटेड फिनोमेना, वेदर से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती. दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड वेदर फिनोमेना. Thus provided ideal flying condition for the jet planes. और इसीलिए ये जो लेयर है स्टेटोस्फेयर, ये आइडियल प्रोवाइड लेयर है फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर, दिस लेयर लाई अबव द स्टेटोस्फेयर. मेसोस्फेयर जो लेयर है, दिस इज द थर्ड लेयर एंड लाई अबव द स्टेटोस्फेयर. स्टेटोस्फेयर के ऊपर की लेयर है जिसे हमने नाम दिया है मेसोस्फेयर. इट एक्सटेंड, इसका जो एक्सटेंड है टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. द नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट मेसोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज. अ नैरो बाउंड्री, एक नैरो बाउंड्री है जो सेपरेट करती है. सेपरेट मीन्स डिफरेंट करना, अलग करना. सेपरेट द मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर. मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करने की नैरो बाउंड्री है जिसे हमने नाम दिया है स्ट्रेटोपॉज. पॉज मीन्स होता है रोकना, तो स्ट्रेटोपॉज नाम दिया है. इन दिस मेसोस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट. कि मेसोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. व्हेन मीटियोर्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस एंड रीच दिस लेयर दे बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन. कि व्हेन मीटियोर्स एंटर द एटमॉस्फेयर, जब मीटियोर्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, they reaches in this layer. वो इस लेयर, कौन सी, which layer we are talking about? Mesosphere. कि when they enter in the mesosphere they burn due to friction. कि वो friction के कारण वहीं पर burn हो जाते हैं, वहीं जल जाते हैं. Next layer is thermosphere. This layer lie above the mesosphere. Thermosphere just lie above the mesosphere and extend is about 450 किलोमीटर्स. और इसका एक्सटेंड है अबाउट 450 किलोमीटर्स. टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज हाइट. कि टेम्परेचर इस लेयर में रैपिडली, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है एज द इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होता है. अगेन अ बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर. थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में भी एक बाउंड्री है एंड वी कॉल इट मेसोपॉज, जिसे हमने क्या नाम दिया है? मेसोपॉज. This layer contain electrically charged particles called ions. कि thermosphere में some small electrically charged particles are there. कुछ electrically charged particles हैं और जिन्हें हम कहते हैं ions. तो what is ions? Ions are the small electrically charged particles. Now सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ आवर प्लैनेट इन द थर्मोस्फेयर. की जो सैटेलाइट मूव करते हैं अराउंड आवर प्लैनेट, वो कौन सी लेयर में मूव करते हैं? इन थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस. थर्मोस्फेयर का सेकेंड नेम है आयनोस्फेयर. वी ऑल्सो कॉल थर्मोस्फेयर एज आयनोस्फेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है. Next one is about the exosphere.
Exosphere is the uppermost layer of atmosphere. Exosphere, uppermost layer of the atmosphere, and it extend to the height about 1600 kilometers. और इसकी जो extend है to the height about 1600 kilometers. This layer is extremely rarefield. Rarefield means होता है different. कि this layer is extremely different from other layers. ये जो layer है different है from other layer. It is very thin layer with only very light gases like hydrogen and helium. Next one is significance of the atmosphere. Students, we know that living things inhale oxygen while breathing, and green plants produce oxygen during photosynthesis. कि student, as you all know, कि लिविंग थिंग्स इनहेल ऑक्सीजन. लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. एंड वाइल ब्रीदिंग, एंड ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड विच ह्यूमंस एंड एनिमल रिलीज. कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं which human and animal release into the air. जो human beings और animal release करते हैं into the air to make their own food, अपना खाना बनाने के लिए. And in turn release oxygen, और इसके बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. Another important significant point of atmosphere is ozone layer protect us from harmful ultraviolet rays of the sun. कि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन. वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन. कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है. वाटर वेपर प्रेजेंट कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर में. और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? Falling of water in any form, rain, sleet, silt, snow, hailstorm. So this process known as precipitation. The dust particles from the nucleus for condensation, which result the formation of cloud that causes rainfall and snowfall. So this is all about the significance of atmosphere. Now our next topic is greenhouse effect. What is greenhouse effect? A blue box is given here, and with the help of this box we can easily understand the greenhouse effect. A greenhouse is a large room made out of glass. Greenhouse क्या है? Suppose you made a large room. आपने बहुत बड़ा रूम बनाया made of glass. जो किसका बना है? ग्लास का. Which is used for growing plants. और what you are doing is that you are growing plants in that glass room. The glass walls allow sunlight to enter during the daytime, but prevent the heat to escape at night. कि ग्लास रूम क्या करता है? जो रूम है इट अलाउ द सनलाइट टू एंटर. ये सनलाइट को अलाउ करता है एंटर होने के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम, बट इट प्रिवेंट द हीट टू एस्केप एट नाइट. लेकिन ये उस हीट को एस्केप वापस लौटने नहीं देता ड्यूरिंग द नाइट. द हीट दस गेट ट्रैप्ड विद इन द ग्रीन हाउस. तो इस तरह हीट डे टाइम में इस ग्लास रूम में आती है, वो वहीं ट्रैप हो जाती है, वहीं पर फंस जाती है और वापस लौटकर नहीं जा पाती. और इसलिए वो जो पूरा एरिया है वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है. इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड एरिया. ये जो प्रोसेस है ये कोल्ड एरिया में प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है. Greenhouse effect is effect produced by carbon dioxide and water vapor in the upper atmosphere, which raises the atmospheric temperature by trapping the heat radiance from the earth surface. Now greenhouse effect में क्या है? Greenhouse are having some gases like carbon dioxide, water vapor, upper atmosphere, विच रेजेज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो ये जो गैसेज हैं ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को रेज कर देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएंस. ट्रैप करना मीन्स पकड़ लेना. बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस. कि सन रेज जो आती हैं उनको वो ट्रैप कर लेती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, वापस जाने नहीं देती.
Carbon dioxide is therefore called the greenhouse gas. Most important greenhouse gas is carbon dioxide. Other greenhouse gases are methane, chlorofluorocarbon, and nitrogen oxide. Students, from the last few decades, the amount of greenhouse gases has increased due to the burning of fossil fuel in factories, etc. कि as you know student, pollution is increasing day by day from last few decade means past 10 years. अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अभी हमने पढ़ा कौन सी है, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कि इनका जो अमाउंट है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फैक्ट्री इमेंशन की पॉल्यूशन के कारण, फॉसिल फ्यूल के कारण ये जो गैसेज है इंक्रीज हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में. एंड दिस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, और इसी के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. दिस फिनोमेना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? कंटिन्यूस राइज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज is known as global warming. I am again repeating what is global warming. Continuous rise in the atmospheric temperature due to greenhouse gases is known as global warming. कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अर्थ के टेम्परेचर का कंटिन्यूसली राइज करना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. नाउ व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है इसके रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. एंड व्हेन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, राइज इन द सी लेवल. जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उनका वाटर क्या होगा? इट राइज इन सी लेवल. तो सी लेवल जो है उनका वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है. चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर. अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी चेंज हो रहा है और एग्रीकल्चर जो है, खेती है, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस गैसेज. क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, विद दिस वी हैव completed our chapter. I hope all of you understood the chapter. Thank you.